Uh, Hello everyone. Our next chapter is motion in straight line. Let us start introductions. We have some definitions here related to this chapter. I have right here the word mechanics. Mechanics. What is mechanics? Actually, the word mechanics means motion. 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 This is not a simple word. This is a book. Mechanics is the branch of physics which deals with condition of object at rest. कब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा, कब मोशन में होगा, ये सारी कंडीशंस इस बुक में हम स्टडी करते हैं। मैकेनिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ब्रॉडली मैकेनिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज काइनामेटिक्स एंड सेकंड इज dynamatics. These are the Greek words kinematics and dynamatics. Kinematics is the branch of physics which deals with study of object at rest. Whenever objects are under the action of equilibrium forces, they are at rest. Rest में कब होते हैं ऑब्जेक्ट? Suppose that this is a table, this is a book, this is any object on the table, and this is at rest. This is at rest because downward force is equal to upward force. Upward force is reaction, downward is weight. W is equal to mg. We shall discuss about all these things in the full book. And the word dynamics, this is very important word. This is the Greek word derived from the word dynama, which means motion. In this book we will study about the motion of object, but we will consider the cause of motion. In this book we doesn't consider the cause of motion, but in this book we will consider the cause of motion. We shall discuss in this chapter when object is under the action of forces, what is the displacement covered by the object, what is the velocity gained by the object, what is the speed, what is the acceleration, and what is the various type of acceleration, uniform accelerated motion. All these parameters which we are going to discuss in these chapters. What is the amount of force act on the object, what is the power gained by the object. This all these things we are going to discuss in this chapter. So next one is, this is rest. What is rest? How will you define the word rest? Rest, when rest, suppose that let us suppose that again this object rest, uh, the object is said to be at rest when it doesn't change its position with respect to surrounding. कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, चेयर है, पड़ा हुआ है, बाहर पड़ा हुआ है, टेबल है, अगर वो मोशन में नहीं है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? द ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग. लेट अस सपोज दैट मैं बस में बैठा हूँ, तो आई एम एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू बस, बट बस इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग. तो मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट changes its position with respect to surrounding, the object is said to be in motion, and rest when an object doesn't change its position with respect to surrounding, the object is said to be at rest. Next point is point object. So point, what is point object? This is just a concept. पॉइंट ऑब्जेक्ट का एक एग्जांपल देता हूँ. सपोज दैट यू आर इन एरोप्लेन, आप एरोप्लेन में हैं और आप वहाँ से एक बिल्डिंग दिख रहे हैं, तो आपको बिल्डिंग बिल्कुल छोटी सी दिखाई देगी. तो मैं बोलूँगा बिल्डिंग की लेंथ आपको नेग्लिजिबल दिखाई दे रही है, लेंथ नेग्लिजिबल, ठीक है, उसकी ब्रेथ नेग्लिजिबल, हाइट नेग्लिजिबल. तो व्हेन एवर एनी ऑब्जेक्ट हैविंग, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है नेग्लिजिबल डायमेंशंस होता है, द ऑब्जेक्ट इज नोन एज पॉइंट object. Next definition is one dimensional motion. This is important. Now these are the basic concept which I am going to start in this chapter. One dimensional motion. What is one dimensional motion? Let us start with the example. A train on a straight track, एक ट्रेन जा रही है स्ट्रेट ट्रैक पे. तो उसकी मोशन को डिस्कस करने के लिए आपको एक ही पैरामीटर की, ये ट्रेन चल रही है इधर, ये देखो ट्रेन अलॉन्ग, मैंने ये लाइन बना ली, दिस इज़ अ लाइन, आप यहाँ पे खड़े हो, दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन. इस लाइन को मैंने मान लिया एक्स एक्सिस. अब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से यहाँ से ये ट्रेन आफ्टर सम टाइम यहाँ पे पहुँचेगी, आफ्टर सम टाइम यहाँ पे पहुँचेगी, आफ्टर सम टाइम यहाँ पे पहुँचेगी. टाइम तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको मैं
दिस इज़ अ वेरिएबल, टाइम चेंज होगा, यहाँ पे टाइम 0 है, यहाँ पे t1 है, यहाँ पे t2 है, यहाँ पे टाइम 3 है, लेकिन चेंज क्या हो रहा है, इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, यहाँ पे x1 है पोजीशन, यहाँ पे x2 है, यहाँ पे x3 है, लेकिन एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। ऐसा कोई भी मोशन इन विच द मोशन इन विच ओनली वन कोऑर्डिनेट इज रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज वन डायमेंशनल मोशन, दैट इज़ वन। तो एग्जाम्पल मैंने दिया इसका, ए मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन और ए फ्री फॉल, फ्री फॉल जैसे कोई ऑब्जेक्ट है आपने अंडर द ग्रेविटी वो मोशन में है, देन ओनली ऑल्सो वन कोऑर्डिनेट दैट इज डिस्टेंस इज रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। टू डायमेंशनल मोशन, व्हाट इज टू डायमेंशनल मोशन? सपोज दैट स्नेक इज क्राउलिंग, ये फ्लोर है, ये रूम, जैसे सपोज दैट ये दिस इज दीज आर द वॉल्स ऑफ ए रूम, कमरे की दीवारें हैं ये एक दीवार को मैंने एक्स एक्सिस मान लिया और दूसरी को वाई एक्सिस मान लिया। यहाँ पे सही है, सपोज दैट इज ए चेयर, यहाँ पे एक चेयर पड़ा हुआ है, तो इस चेयर का पोजीशन देखने के लिए मैं देखूंगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस द चेयर जो है इतने डिस्टेंस पे है और अलॉन्ग वाई एक्सिस चेयर इतने डिस्टेंस पे है। इस डिस्टेंस दिस इज, यहाँ पे एक्स भी 0 है और यहाँ पे वाई भी 0 है। अलॉन्ग एक्स एक्सिस हेयर द डिस्टेंस इज एक्स, इसका, और अलॉन्ग वाई एक्सिस इतनी हाइट पे है इधर को ये, तो डिस्टेंस इज वाई। तो यहाँ पे मैं इसके कोऑर्डिनेट लिखूँगा पी पॉइंट पे एक्स एंड वाई। सो टू कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ी, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो दिस इज अ टू डायमेंशनल मोशन। अगर ये यहाँ से यहाँ पे जाएगा, किसी और P2 पॉइंट पे जाएगा, देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज अंडर द टू पैरामीटर्स विच आर चेंजिंग along x axis and along y axis, this type of motion is known as two dimensional motion। और इसके एग्जाम्पल मैंने दिए, एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखने हैं। एग्जाम्पल मैंने बोला कोई ऑब्जेक्ट फ्लोर पे पड़ा है, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इन प्लेन, एन ऑब्जेक्ट इन प्लेन, प्लेन जैसे फ्लोर है। और दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं लूँ इसका सेकंड, motion of a planet around earth, this is also the motion of planet, motion of planet around earth, this is also the example of two dimensional motion, right। थ्री डिमेंशनल मोशन की बात करते हैं, थ्री, व्हेन थ्री कोऑर्डिनेट्स, जैसे सपोज करो रूम है, रूम में कोई ये रूम है, ये स्पेस है, स्पेस में कोई काइट फ्लाइंग इन द स्काई, तो पेपर पे मैं इसको सब, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज वाई कोऑर्डिनेट, दिस इज अ जेड कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पे एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है और जेड भी 0 है। तो सपोज दैट ए काइट इज फ्लाइंग इन द स्काई, दिस इज अ काइट। तो आपको जो है काइट को पोजिशन को जो है ट्रेस करने के लिए, ट्रैक करने के लिए, यू नीड थ्री कोऑर्डिनेट्स, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस along this side and along पेज पे मैं इतना ही बनाऊंगा, 3D पे ये दिखता है अच्छे से, थ्री डिमेंशनल मोशन। यू कैन इमेजिन काइट इन द स्काई। या और एग्जांपल देखना है अपने से, रूम है, रूम का कॉर्नर मान लो दैट इज़ ऑरिजन, वहाँ पे दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ, जैसे रूम का कॉर्नर है ये, रूम के कॉर्नर पे सपोज दैट एनी ऑब्जेक्ट इन द स्पेस, तो थ्री वॉल से जो उसका डिस्टेंस होगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस, along y-axis and along z-axis, that is three-dimensional motion when object will move from one point to another points. These are the basic definitions. You can see the detail in your book. Next is, let us come on the point. Another is scalar quantities. What difference between scalar and vector quantities? Scalar and vector quantities. What is vector quantities? तो वेक्टर्स पे आते हैं, स्केलर अपने आप ही समझ आ जाएगा। वेक्टर्स क्वांटिटीज़ क्या है? सपोज दैट आई हैव अ स्टोन, आई हैव अ स्टोन, ये पोजीशन बना लेता हूँ मैं यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की, और ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ। आई हैव अ स्टोन, आई हैव अ स्टोन, मैंने इसको थ्रो किया, इधर किया along north east direction, right? I have a stone, a stone is thrown along, कौन सा डायरेक्शन दिया इसने, नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। और इस स्टोन ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया 20 मीटर, 20
मीटर। अब मैं साथ में डायरेक्शन भी लिख रहा हूँ, अलोंग नॉर्थ ईस्ट, अलोंग नॉर्थ ईस्ट। तो इस डिस्प्लेसमेंट में दो चीज़ें हैं, एक 20 मीटर और ये दूसरी डायरेक्शन। ये जो 20 मीटर है इसको मैं बोलूँगा मैग्नीट्यूड, और ये नॉर्थ ईस्ट है इसको बोलूँगा मैं डायरेक्शन। जब फिजिक्स में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास दो दो इन्फॉर्मेशन हो, वन इज मैग्नीट्यूड एंड अदर इज डायरेक्शन, द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, that is known as vector quantity. Suppose that this stone is moving with a speed named velocity. तो velocity 12 किलोमीटर पर आवर along north east. So I will mention here 12 किलोमीटर पर आवर is magnitude and this is direction. तो any vector quantity हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसके ऊपर हम उसके हेड पे हम वेक्टर लगाते हैं। ये वेक्टर, ये मैंने ऊपर भी लिखा हुआ वेक्टर क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी होगी वेक्टर क्वांटिटी, उसके ऊपर हम हेड लगाएंगे। इस हेड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, और ये जो एरो मेंशन किया है इसका मतलब होता है डायरेक्शन। द मीनिंग ऑफ एरो इज डायरेक्शन। जैसे डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, अगर मैं वेक्टर में लिखूंगा तो मैं उसके हेड पे ऐसे वेक्टर लगाऊंगा। वेलोसिटी लिखूंगा वेक्टर क्वांटिटी, अगर उसकी डायरेक्शन होगी तो उसके हेड पे मैं एरो। एक्सेलरेशन लिखूंगा तो एरो लगाऊंगा, तो फोर्स लिखूंगा एरो लगाऊंगा, टॉर्क लिखूंगा एरो लगाऊंगा। तो एनी क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी, एंड वी ऑलवेज रिप्रेजेंट ए वेक्टर क्वांटिटी बाय पुटिंग ए एरो ऑन इट्स हेड, ऑन देयर हेड, राइट। दीज आर द वेक्टर क्वांटिटी। और इनके एग्जांपल मैंने दिए, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल, बट देयर शुड बी अ सिंगल डायरेक्शन। डबल नहीं होना चाहिए, सिंगल डायरेक्शन होना चाहिए। ओनली देन द क्वांटिटी इज कंसिडर्ड एज वेक्टर क्वांटिटी। अगर जैसे सपोज करो, सपोज वर्क है, आई हैव वर्क हियर, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क को मैं वेक्टर क्वांटिटी बोलूँगा या स्केलर बोलूँगा? वर्क को मैं स्केलर बोलूँगा, क्योंकि फोर्स की अलग डायरेक्शन हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट की। देर आर लॉट्स ऑफ केसेस वेन एवर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हैविंग डिफरेंट डायरेक्शन। सो वर्क हैविंग टू डायरेक्शंस, फोर्स एंड का अलग से, डिस्प्लेसमेंट का अलग से। वर्क इज नॉट कंसिडर्ड एज ए वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। द क्वांटिटीज हैव द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग टू डायरेक्शंस इज नोन एज scalar quantity, not a vector quantities. The quantity having single direction is supposed to be vector quantity, is a vector quantity. And scalar quantity, I have mentioned lots of example here. Length is a scalar, mass is a scalar, mass का कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, जैसे स्टोन है इसका मास इधर उधर। देयर इज अ टाइम, डेंसिटी, वॉल्यूम, वर्क, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एटसेट्रा। दे डोंट हैव अ सिंगल, कईयों का डबल डायरेक्शन है, दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, या आप 12th क्लास में पढ़ोगे, फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds, एरिया वेक्टर। तो ये जो है स्केलर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन दो पैरामीटर पे डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये आप इसको नोट करोगे। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ वेक्टर्स एंड स्केलर्स, I have another question, distance and displacement. What is the difference between the two definitions, distance and displacement? What is distance? What is distance? Suppose that this is a no, this is a station A, या A स्टेशन में मान लेता हूँ, this is a चंडीगढ़, और दिस इज अम्बाला, एंड दिस इज पटियाला। चंडीगढ़ से आपने, you started your motion from Chandigarh, you reach at Ambala, then you have started your journey from Ambala to Patiala. So the total length of the path,
लेंथ यहाँ से मैं मान लेता हूँ दिस इज 50 किलोमीटर, दिस इज 40 किलोमीटर। तो टोटल लेंथ कितनी होगी पाथ की, 50 प्लस 40 इट इज इक्वल टू 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर। आपको चंडीगढ़ से पटियाला जाना है, आप पहले अम्बाला गए फिर पटियाला गए, द टोटल लेंथ इज ऑफ द पाथ इज नोन एज डिस्टेंस। डिस्टेंस। लेकिन अगर आपको चंडीगढ़ से पटियाला जाना था, आपने स्ट्रेट रोड फॉलो किया, स्ट्रेट 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 तो स्ट्रेट रोड फॉलो किया तो आपका लेंथ जो है 90 नहीं आएगा अब, दैट इज इक्वल टू, सपोज दैट डायरेक्ट डिस्टेंस जो है दिस इज इक्वल टू 60 किलोमीटर, चंडीगढ़ टू पटियाला। सो डायरेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ इज नोन एज डिस्टेंस। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, जैसे और बना देता हूँ मैं, दिस इज अ पॉइंट ए, पॉइंट ए, दिस इज अ पॉइंट बी। अगर आप यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपने जर्नी किया, दिस इज ये, दिस इज नोन एज डिस्टेंस, दिस इज डिस्टेंस। अगर आप सीधे ही एरो आपने ड्रॉ कर दिया ए टू बी, दिस इज displacement. So displacement is a vector quantity, this is a distance is a scalar quantity। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, इसका एक पार्टिकुलर डायरेक्शन है। दिस इज द लेंथ ऑफ द पाथ, दिस इज द एन एरो ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। राइट, तो हमने नोट किया यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, ये वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट लिखना हो तो मैं एक्स के ऊपर वेक्टर लगाऊंगा, डिस्टेंस लिखूंगा तो मैं एक्स के ऊपर वेक्टर नहीं लगाऊंगा। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा ही कम आएगा डिस्टेंस से, डिस्प्लेसमेंट कम होगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव, नेवर नेगेटिव। डिस्टेंस का वैल्यू या तो पॉजिटिव आएगा या तो जीरो हो सकता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, इसका नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल जैसे सपोज दैट इज अ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, दिस इज अ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये ए पॉइंट है, दिस इज अ बी पॉइंट, एन ऑब्जेक्ट फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक मोशन किया, ए से बी तक, फिर वो वापस आ गया बी से ए तक। ठीक है, अगर बराबर होगा जाना और आना तो डिस्प्लेसमेंट हुआ जीरो, अगर बराबर हुआ। अगर ए से बी तक की गया, अगर गया और वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। लेकिन अगर ए से बी तक की गया तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आप पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से। अगर बी से वापस ए तक आया तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, बी से ए तक डिस्प्लेसमेंट, बी से अगर बी सिंगल बी से ए की तरफ ही आया, ये अलग अलग बना देता हूँ मैं, जैसे ये पॉइंट ओ ए बी, ए से बी तक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और बी से ए तक डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव। राइट,